Good evening, students. Welcome to the lecture number 8 from the chapter of units and measurement. ये chapter मैंने इसलिए चुना है because some of the students were finding it difficult to solve the problems based on the zero error of screw gauge and Vernier caliper. So I will be giving you a very short description on what is zero error and how we have to find the linear dimensions of any object if there is a zero error in the screw gauge or the Vernier caliper. So first of all, we will take the case of a screw gauge. I have made a very simple diagram and I have also written some brief description about the zero error. So I will be just telling you about these in a very concise manner. Now स्क्रू गेज में आप देखेंगे यहाँ इस फिगर में, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ मैंने यहाँ पे बनाया है. एक तो स्क्रू गेज का मेन स्केल है और एक आपका स्क्रू गेज का एक ये सर्कुलर स्केल है. Circular scale is also known as a head scale, and in many of the problems you will find it by the name of head scale. मेन स्केल और पिच स्केल भी सेम होते हैं, इनके ये डिफरेंट नाम है. सो इन मेनी टाइम्स इन द क्वेश्चंस यू विल बी फाइंडिंग इट बाय द नेम ऑफ पिच स्केल और मेन स्केल. नाउ ये कैसे पता करते हैं कि स्क्रू गेज में या वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर है या नहीं. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्क्रू गेज में क्या होता है, जैसे यू फ्रेम आपने अपने स्कूल की लैब्स में देखा होगा, तो वहाँ पे एक एंड पे एक एनवल होता है या स्टड होता है, दूसरे एंड पे स्पिंडल होता है. सो व्हेन वी मूव द स्पिंडल फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ रैचेट, then what happens that when this spindle will touch the anvil, and when it will touch the anvil, then that ratchet will become free. And now if the zero of this circular scale or the head scale coincides with the zero of the main scale on this datum line और द पिच स्केल एक्सिस, अगर दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं तो ज़ीरो एरर नहीं है. अगर इस फिर से बोल रहा हूँ, अगर सर्कुलर स्केल का या हेड स्केल का जो ज़ीरो मार्क है या ये अगर इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल और द हेड स्केल is coinciding with the zero of the main scale or the pitch scale which is lying on the datum line or the pitch scale axis. ठीक है ना, ये देखिए ये आपका datum line है, तो ये आपका ज़ीरो है. अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड कर जाते हैं which is on this datum line, then there is no zero error. However, अगर इसका ज़ीरो, ये कब की बात, ये कब होगा, ये हम कब इसको हम चेक करेंगे, when the anvil and the spindle of the screw gauge are touching each other. ठीक है, पूरा हम स्पिंडल को लाके वहाँ पे टच करेंगे and then we will see whether this zero on this circular scale is coinciding with the zero of this main scale or not. If the zero of the circular scale is coinciding with the zero on the main scale, which is lying on this datum line, when the spindle and the anvil or the stud are touching each other, then there is no zero error. However, अगर इसका ज़ीरो और इसका ज़ीरो कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है, जब हम स्पिंडल को लेके आते हैं और यहाँ पे स्टड से टच करा देते हैं, ठीक है, when the spindle of the screw touches the stud of when the spindle of this screw gauge touches the stud of this touches the stud, then
then if this 0 is not coinciding with the 0 of this main scale, ठीक है, which is lying on this datum line, then there is a some zero error, ठीक है. अगर इसका ज़ीरो इसके ज़ीरो के साथ में कोइंसाइड नहीं कर रहा है, स्पिंडल और एनविल के टच होने के बाद, तब इसके मतलब ये है कि इसमें कोई ज़ीरो एरर है. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. अगर इफ़ द ज़ीरो on the circular scale or the head scale is lying below the this datum line, if the zero of the circular scale is lying below the zero of the main scale on the datum line, then the zero error is positive and we have to go for a zero correction. ज़ीरो करेक्शन क्या होगा? इट विल बी नेगेटिव. इसका मतलब क्या है कि जो भी मेजर्ड वैल्यू होगी उसमें से हमें ये ज़ीरो करेक्शन माइनस करना होगा. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ. इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज लाइंग बिलो द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल ऑन दिस डेटम लाइन, देन द ज़ीरो एरर इज पॉजिटिव and negative zero correction will be applied. If the zero on this circular scale is above the zero of the main scale on this datum line, or you can say the pitch scale axis, then the zero error is negative and we have to apply a positive zero correction. Positive zero correction मतलब ये है कि measured value में हम वो जो ज़ीरो करेक्शन है ऐड करेंगे. तो ये तो हो गया स्क्रू गेज के बारे में. वर्नियर कैलिपर में भी अच्छा ठीक. ओके, नाउ वर्नियर कैलिपर में क्या है? एज यू नो दैट देयर इज अ मेन स्केल डिवीजन, देयर इज अ मेन स्केल एंड देयर इज अ वर्नियर स्केल. हम क्या करते हैं, ये दोनों ये जॉज हैं, ये जॉ है, ये भी जॉ है. तो क्या करेंगे, हम दोनों जॉ को आपस में टच करा दिए जैसे यहाँ पे किया हुआ है. नाउ इफ द zero of the main scale is not coinciding with the zero of the vernier scale, then it means that there is a zero error when both the jaws are touching each other. अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे. इफ द जीरो of the vernier scale is on the right side of the zero of the main scale, then the error is positive, that is the zero error is positive and we have to apply the negative zero correction. मतलब measured value में से zero correction की जो value हो वो हमें माइनस करनी होगी in order to get the true value of that means in order to get the true value of the linear dimensions of any object which we are measuring. और अगर ये ज़ीरो इस ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है when we are seeing from the front, ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है एज सीन अबव. जब हम फ्रंट से देख रहे हैं ये ज़ीरो जो है राइट हैंड साइड को है, मेन स्केल का जो मेन स्केल का ज़ीरो है उसके राइट हैंड साइड में ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है. तो ये आपका हो गया आपका पॉजिटिव ज़ीरो एरर और यहाँ नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन लगेगा. और अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं और ये ज़ीरो हमारा लेफ्ट हैंड साइड को हो गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है आपका नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है. और उस केस में हम पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करेंगे. उसका मतलब ये है कि मेजर्ड वैल्यू में हम ज़ीरो करेक्शन को ऐड करेंगे in order to get the true value of that particular, in order to get the true value of the linear dimensions which we are measuring for an object. तो ये है. तो इसमें हमारा ये हो गया. एक तो ज़ीरो दिस पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, और कैसे हम इसका ज़ीरो करेक्शन हमें निकालना है. पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो पॉजिटिव करेक्शन हमारा सॉरी अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो हमारा ज़ीरो करेक्शन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है. और अगर ज़ीरो एरर हमारा पॉजिटिव है तो ज़ीरो करेक्शन जो है हमारा नेगेटिव हो जाएगा.
ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव है, वो क्या होता है वो मैंने अभी आपको समझा दिया है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे with regards to the zero error in the screw gauge and the vernier caliper. Now, in order to understand it in a much better way, we will do one question on vernier caliper and one question on screw gauge. उससे आपको और थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि भैया इन क्वेश्चंस को हमें करना कैसे है। ज़ीरो एरर अगर है किसी अगर इस इंस्ट्रूमेंट में, तो हमको फिर ट्रू वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट की लीनियर डायमेंशन अगर हमें निकालनी है तो हमें उसको कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या है दो क्वेश्चंस करेंगे, एक स्क्रू पे कर लेंगे स्क्रू गेज के ऊपर, और एक हम कर लेंगे आपका वर्नियर कैलिपर के ऊपर। Now, so I'm just writing the first question. This question, in this question, we have to find the thickness of the glass plate, and the question is, एक स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज with a positive zero error, with a positive zero error, of 5 divisions, is used for measurement. Now, when a glass plate is held between the two studs, between the two studs, between the stud and the spindle होना चाहिए, stud and the spindle is held between the stud and the spindle. The main scale reading is 5 mm. The main scale reading is equal to 5 mm, and the head scale is, and the coinciding head scale division is 25, and the coinciding head scale division is 25. ठीक है, if the least count of the screw gauge is 0.01, if the least count is equal to 0.01 mm, then thickness of glass is, अभी इन्होंने 4 ऑल्टरनेटिव दिए हैं, 5.2 mm, 6.5 mm, 5.2 mm, B is 6.5 mm, C is 5.2 सेंटीमीटर लिखा है, और एक है आपका 6.8 mm, 5.2 mm, 6.5 mm, and then ये है not 6.8 mm, 6.8 mm, और दूसरा है शायद 9.8 mm. So this is the question.
In this question, the screw gauge has a positive zero error. Positive zero error का मतलब ये हो गया कि we have to apply the negative zero correction. Negative zero correction का मतलब क्या है कि जो भी हमारी measured value आएगी उसमें से हम ज़ीरो करेक्शन की जो वैल्यू होगी वो हम इसमें से माइनस कर देंगे in order to get the true value of the linear dimension of any object which we are measuring. So in this case क्या है हमारा विद अ जीरो एरर ऑफ 5 डिवीजन. तो हमें सबसे पहले लीस्ट काउंट हमें पता है. सो जीरो करेक्शन कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू दी now this is the screw gauge with a positive zero error of 5 division means the fifth division है किस पे circular scale पे that is coinciding with the datum line on the pitch scale or the main scale. ठीक है. So this is what this is the fifth division का मतलब ये है कि this is the division on the circular scale which is coinciding with the datum line on the main scale or you can say the pitch scale axis. So यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे 5. ये हमारा वो हो गया LC into the coinciding circular scale division, that is that division which is coinciding with the datum line on the main scale. So this is equal to 0.01 into 5 which is equal to 0.05 mm. तो जीरो करेक्शन तो आ गया. अब हमारा आता है थिकनेस ऑफ द ग्लास. ये क्या हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू द पिच स्केल रीडिंग और द मेन स्केल रीडिंग. ये फॉर्मूला ही है. मेन स्केल रीडिंग या पिच स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग या क्या हो सकता है हेड स्केल. तो सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू द लीस्ट काउंट. अब यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो हमारा जो ज़ीरो जो करेक्शन है इसको मैंने शॉर्ट में जेड से लिख दिया है. तो ज़ीरो करेक्शन हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. माइनस कितना होगा 0.05. तो ये कितना हो गया. मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी है 5 mm ऊपर दिया हुआ है. सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है द कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल है या हेड स्केल है दोनों एक ही बात है. द कोइंसाइडिंग हेड स्केल डिवीजन इज 25. तो यहाँ पर हमारा ये कितना हो जाएगा 25. दैट इज द कोइंसाइडिंग हेड स्केल डिवीजन और द सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 25. एंड लीस्ट काउंट कितना है 0.01 जो उसमें दिया हुआ है माइनस 0.05. तो 5 हो गया प्लस ये हो जाएगा 0.25 माइनस 0.05. तो दिस इज इक्वल टू 5.25 माइनस 0.05. तो ये हो जाएगा 0.2 माइनस ये हो गया 5.2. ठीक है. या सो द ऑल्टरनेटिव द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विल बी इक्वल टू ये वाला हमारा ऑल्टरनेटिव करेक्ट है 5.2 mm थिकनेस ऑफ द ग्लास. ठीक है. आई थिंक दिस इज ये क्वेश्चन करने में अभी मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. बट एनीवे इफ समवन हैज़ एनी प्रॉब्लम he can definitely contact me at any moment of time. My mobile number and my email address is given on the top. So this is how we find the linear dimension of any object with the help of a screw gauge which is having some zero error. अब यहाँ पर हमारा मेन यही था कि हमको पहले ज़ीरो करेक्शन निकालना था. ज़ीरो करेक्शन पॉजिटिव है तो वो हमें ज़ीरो करेक्शन निकाल दिया. नाउ बिकॉज ज़ीरो एरर जो है वो पॉजिटिव है इसलिए ज़ीरो करेक्शन माइनस होगा. दैट इज़ माइनस होने का मतलब क्या है कि जो हमारी एक्चुअल जो रीडिंग है स्क्रू गेज की एक्चुअल रीडिंग तो स्क्रू गेज की ये होती है दैट इज़ मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू द लीस्ट काउंट. अगर ज़ीरो एरर नहीं है पर अगर ज़ीरो एरर है और अगर वो पॉजिटिव है तो हमारा नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन होगा. नेगेटिव मीन्स इस वैल्यू में से हम ज़ीरो करेक्शन की वैल्यू को माइनस कर देंगे. तो दिस इज द आंसर विच वी हैव और 5.2 mm and the alternative A is correct in this case. Now this is
one question which I have taken from vernier. Now I will, sorry, from the screw gauge, and now I will be taking one question from the vernier. So एक क्वेश्चन है मेरे पास में, इसमें लिखा हुआ है द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर. When the two jaws touch each other, when, I will be writing this question in a very short manner. When the two jaws, वही जो आपको मैंने बताया था कि वर्नियर कैलिपर के दो जॉज हैं जब आपस में टच हो रहे हैं, टच each other, the fifth division of the vernier scale, इसमें है फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल को मैं BS लिख रहा हूँ. वर्नियर स्केल coincides with a main scale division, coincides with a main scale division. मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया MSD. And the zero of the vernier scale lies to the left of the zero of the main scale. Zero of vernier scale is on the left of is on the left of is on the left of the zero of the main scale. ठीक है, ये हो गया. While measuring the diameter of a sphere, while dia of sphere zero mark of the vernier scale, zero mark of the vernier scale, I have written it in short VS, lies between 2.4 centimeter and 2.4 and 2.5 centimeter. Between 2.4 centimeter and 2.5 centimeter of the main scale. ठीक है. Six vernier division coincides and the sixth vernier division and sixth vernier division coincides with a main scale division. Diameter of the sphere is, question is dia of sphere is, they have given four options, 2.51, 5.12, that is 2.51 centimeter, B is 5.12 centimeter, 2.51 mm, ये तो क्वेश्चन है आपका. अच्छा, अभी सबसे पहले हमको यह देखना है
कि यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन द टू जॉज टच ईच अदर द फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर scale coincide with the main scale. Zero of the vernier scale is on the left of the zero of the main scale. इसके मतलब क्या हुआ, ये आपका हो गया लेफ्ट में है. इट इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव जीरो एरर. अब नेगेटिव जीरो एरर है तो हमें जो जीरो करेक्शन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा. मतलब जो रीडिंग हम मेजर करेंगे उसमें हम जीरो करेक्शन को ऐड करेंगे. तो सबसे पहले हमें जीरो करेक्शन निकालना है. Now जीरो करेक्शन मैं यहाँ पे लेकर रहा हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व इन दिस यहाँ पर बिकॉज यहाँ जगह नहीं है. तो जीरो करेक्शन जो है दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट दिया है यहाँ पर 0.01 सेंटीमीटर इनटू यहाँ लिखा है व्हेन द टू जॉज टच ईच अदर फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वही है द कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग दैट इज यहाँ पर हो जाएगा वो हमारा फिफ्थ डिवीजन. द कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग. तो ये कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग मीन्स दैट वर्नियर स्केल रीडिंग विच इज कोइंसाइडिंग विद एनी वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन. किसी भी एक मेन स्केल डिवीजन से वो कोइंसाइड इसको करना चाहिए. अगर अब ये फिर जो डिवीजन है दिस इज कोइंसाइडिंग विद ए मेन स्केल डिवीजन, मतलब कोई एक पर्टिकुलर मेन स्केल डिवीजन के साथ में वो कोइंसाइड कर रहा है. सो जीरो करेक्शन इज इक्वल टू LC इनटू द कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग. वर्नियर स्केल रीडिंग जो कोइंसाइड कर रही है विद द मेन स्केल डिवीजन इज फिफ्थ दैट इज इक्वल टू 5 0.05. ये हो गया मेरा सेंटीमीटर. ये तो जीरो करेक्शन हो गया. नाउ this is a negative zero correction and so sorry this is a zero this is a negative zero error, so therefore this zero correction will be positive. ठीक है, यहाँ पे zero error जो है वो मेरा negative है because it is on the left of the zero of the main scale. Zero of the vernier scale is on the left of the zero of the main scale, so जीरो एरर इज नेगेटिव एंड जीरो करेक्शन इज पॉजिटिव. ये तो हो गया हमारा. अब हमें निकालना क्या है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर. तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू द मेन स्केल रीडिंग प्लस द वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू द लीस्ट काउंट. दिस वाज अ नेगेटिव जीरो एरर, सो द जीरो करेक्शन विल बी पॉजिटिव, सो आई विल राइट हियर एज 0.05 सेंटीमीटर. मेन स्केल रीडिंग क्या है यहाँ पर, यहाँ देखेंगे. While measuring the diameter of sphere, zero mark of the vernier scale is lying between 2.4 and 2.5. तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई, जीरो जो है वर्नियर का वो 2.4 और 2.5. ये आपको मान लीजिए 2.4 है, लेट से 2 पॉइंट है मेन स्केल पे. ये आपको 2.4 है मेन स्केल पर और ये आपको 2.5 है. तो वर्नियर का जो है लिखा है इसमें कि दी जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर, जो जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर है वो इनके बीच में है कहीं पे. ठीक है, तो अगर इनके बीच में है तो मेन स्केल रीडिंग मेरी क्या हो गई 2.4. ठीक है, बीच में अगर है इसके 2.4 एंड 2.5 के बीच में अगर मेरा जो ये जीरो मार्क अगर वर्नियर स्केल का इनके बीच में है तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है दैट इज 2.4 वो मेरी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी. ठीक है, और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है इसमें लिखा हुआ है एंड द सिक्स वर्नियर डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन. तो ये हो जाएगा 6 इंटू 0.01. ठीक है, प्लस 0.05. ये हमारा जो जीरो करेक्शन था. तो ये हो गया 2.4 प्लस 0.06 प्लस 0.05 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको तीनों को जोड़ेंगे. ये हो जाएगा 0.06 एंड 0.05 1 5 2.5 सेंटीमीटर. दिस इज द करेक्ट आंसर. 2.51 सेंटीमीटर. 2.40 प्लस 0.06 ये हो गया 0.06 and 0.05. So the correct diameter of this sphere is 2.51 centimeter.
So I hope that you have understood what I have tried to um, explain about the zero error of this vernier caliper and the screw gauge. और ये दो क्वेश्चंस करने से मुझे एज फार एज आई कैन मीन्स मेरी समझ के हिसाब से आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि ज़ीरो करेक्शन को कैसे निकालना है, ज़ीरो पॉजिटिव सॉरी ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होता है, ज़ीरो एरर नेगेटिव कब होता है, व्हाट इज़ ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव कब होता है, या ज़ीरो करेक्शन पॉजिटिव कब होता है, वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इस लेक्चर में बताया है। तो ये इसीलिए वो बताने के बाद मैंने ये दो क्वेश्चंस भी कर दिए हैं, जिससे कि अब आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी डेफिनेटली आनी चाहिए कि भाई हाँ, ज़ीरो एरर अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में है तो उसमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रू वैल्यू, या मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लीनियर डायमेंशन है, जो कि हम वर्नियर स्केल से या स्क्रू गेज से मेजर करते हैं, तो उसकी हमें ट्रू वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये दोनों ये दो क्वेश्चन मैंने आज किए हैं, और आज के लिए अभी हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। एंड एनीवन इफ इवन इफ यू हैव एनी डाउट, तो आप फिर भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। यू कैन कांटेक्ट मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। And so in the next lecture now we will be discussing about the next topic, that is called the dimensions of physical quantity. उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट that will be the last topic, and then we will take on the take on some test papers which I have with me, and those test paper basically pertains to the board examinations, and as well as for the NEET examinations also. तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ एक और अच्छा एक क्लैरिटी मिलेगी अलग अलग टॉपिक्स में, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो मैं उन टेस्ट पेपर्स में डालूंगा, उनको हम सॉल्व करेंगे, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन as well as in your forthcoming NEET examination. So thank you very much, and the next lecture, that is the lecture number 9 on the dimensions of physical quantity, will be uploaded very shortly. So thank you very much, and have a nice day.